chapter 1, 2, 3 and 3. Chapter 1. Ma'am, wait, ma'am. I don't have the same book, ma'am. I have a different book whose name is Vistas, ma'am. Because school First do is not have. resources utilization and development. First is resources utilization and development. Second is natural resources, land, soil and water. Third is natural resources, vegetation and wildlife. And lesson 4, mineral and energy resources. We have completed. And in history section, the modern period, establishment of company rule in India, colonialism, rural and tribal society, we have completed. And in the civic section, we have done our constitution, fundamental rights, and the union government, the legislature, and we are doing the union government, the executives. Is it clear? Okay, ma'am. Thank you. Yes, ma'am. Yes. Now open. Page number is that is the power and functions of the president. Power and functions of the president. Yes, in our yesterday class, we have completed it, though we have completed it. But the page someone number has requested page number. I am telling you, just allow me to speak something. आप लोग पेज नंबर पे ही बहुत ज्यादा, जबकि हम बता रहे हैं एग्जीक्यूटिव पावर है, पावर एंड फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट. पेज नंबर इज 222. तुम लोग खुद कुछ भी मेहनत नहीं करना चाहते, जस्ट वेट करते हो कि हम सब कुछ जो है टीचर बता दें, पेज नंबर क्या है, कैसा है, क्या है, कहाँ लिखना है, क्या करना है. बस टॉपिक बता रहे हैं, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट. लेसन भी बता रहे हैं 19, उसमें भी आप नहीं ढूंढ सकते हैं कि कहाँ है, वेयर इट इज. इस तरह का डिस्टर्बेंस क्लास के बीच में हमको ठीक नहीं लगता. आई डोंट लाइक इट. पेज नंबर बताइए. दैट इज नॉट कि आप जो है, इसका मतलब है कि आपने देखा ही नहीं टाइटल कि टाइटल क्या है, व्हाट इज द टाइटल ऑफ द डे और टॉपिक क्या हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. किसी भी तरह से क्लास में अपना बस बना देना है कि अटेंडेंस, यस मैम आई एम डूइंग, आई एम अटेंडिंग द क्लासेस. इसका कोई वैल्यू ही नहीं है. नाउ पावर एंड फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इन द यस्टरडे क्लास, आई थिंक someone has requested कि मैम इसको फिर से बता दीजिए, पावर एंड फंक्शन. तो आप इसको फिर से देख लीजिए. पेज नंबर है 222. फिर से हम बता दे रहे हैं पेज नंबर. और ट्राई टू ओपन वीडियो को ऑन करिए, माइक म्यूट करके वीडियो ऑन करिए सारे लोग. Those who are who is the new student जिसने मुझसे चैप्टर पूछा, अपना नेम फिर से बताइए. न्यू स्टूडेंट. Ma'am, it's me, Pushkar. पुष्कर. You are in which section? Pushkar. Ma'am, I'm in 8H. 8H. Okay. Next. Now, the President of India has executive, legislative, judicial, financial, and emergency power. There are 5 types of power have been discussed in your this book. So please be aware. First is executive power. Being head of the union executive, all the administrative decisions are taken in his or her. मतलब यूनियन एग्जीक्यूटिव मतलब जो जितने भी मंत्री हैं सभी का इसमें हेड वही है. Who is the head of the president है, तो सारा काम उनके नाम पे होता है. जैसे स्टेट में गवर्नर के नाम से होता है. She makes all the important appointments including those of the prime minister, council of minister, governors, chief justice and judges of the supreme court. Mute your mic. नीचे का नहीं खोलो. Mute your mic. Don't disturb the class. क्योंकि जिनका माइक ऑन है ना उनको हम वेटिंग रूम में रख देते हैं. रिपुंजय त्रिपाठी, आप थोड़ा वेटिंग रूम में चले जाइए. अब थोड़ी देर आप उसी में रहिएगा. और जिनका भी अभी मैंने रिपुंजय त्रिपाठी को उन्होंने अपने माइक को म्यूट नहीं किया हुआ था, उनके घर से आवाज आ रही थी, मैंने वेटिंग रूम में दे दिया. और जो भी करेंगे उनको वेटिंग रूम में दे देंगे. आप लोग सेल्फ माइक म्यूट करिए, अदरवाइज रेडी फॉर द पनिशमेंट. हैबिट ही नहीं चेंज हो रही है आपको. I will not allow her to attend the class. Mute your mic. आप अपने माइक को खुद ही म्यूट करके क्लास में बैठिए. Now
The chief minister, governor, chief justice, and judges of the Supreme Court and the High Court. Okay. Next is कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सीएजी उसको कहते हैं ऑफ इंडिया एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। मतलब ये लोग जो हैं सीएजी जो है जितना भी मतलब मॉनिटरी फिनेंशियल काम गवर्नमेंट का होता है उसका ये देखते हैं, सीएजी देखते हैं। तो उनका भी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ही खुद ही करते हैं, मतलब ऑन द नेम करता है, मतलब कहिएगा कि एग्जीक्यूटिव मंत्रिमंडल के लोग करते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट उनको मतलब अप्रूवल देते हैं। विदाउट हिज अप्रूवल ये नहीं, उनको सीएजी मतलब वो काम नहीं कर सकते। The President of India also appoint the member of Election Commission. Election Commission में के members को भी वो appoint करते हैं, Finance Commission etc. He is the Supreme Commander of India Defence Force के जो Supreme Commander वही होते हैं। He has the right to be kept informed about all the decision of the Council of Ministers through the Prime Minister. मतलब उनको जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो भी मतलब काम करते हैं प्राइम मिनिस्टर उनको जाकर बताते हैं, उनको बताना जरूरी होता है। ये जो है उनका एग्जीक्यूटिव पावर है। लेजिस्लेटिव पावर, द प्रेसिडेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। इंडियन पार्लियामेंट के इंटीग्रल पार्ट मतलब उनके बिना पार्लियामेंट का मतलब एकदम जरूरी पार्ट है। इंटीग्रल का मतलब होता है जरूरी पार्ट है इंडियन पार्लियामेंट के। द प्रेसिडेंट कैन समन एंड एड्रेस द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। समन मतलब बुला सकते हैं, रोक सकते हैं और एड्रेस करते हैं दोनों हाउस पार्लियामेंट के। एवरी ईयर द फर्स्ट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट बिगिंस विथ हिज हर एड्रेस। एवरी ईयर मतलब हर साल जो सेशन का जो पहला पार्लियामेंट का जो पहला सेशन होता है उनके इससे मतलब कहिएगा कि एड्रेस करते हैं तभी होता है। एड्रेस मतलब वही सबसे पहले स्पीकर वही होते हैं। एड्रेस करने का मतलब ये होता है विद द फर्स्ट स्पीकर वही होते हैं जो एड्रेस करते हैं। Every year, the first session of the parliament begins with his address. He can dissolve the Lok Sabha before the expiry of its normal term if he can. He advised to do so by the Prime Minister. Dissolve भी कर सकते हैं लोकसभा को समय के पहले, अगर प्राइम मिनिस्टर उनको ऐसा करने के लिए कहते हैं तो। यहाँ मेरा एक क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर उनको ऐसा करने के लिए कब बोलेंगे? बताइए, कोई हमको बताएगा इसका आंसर? प्राइम मिनिस्टर उनको ऐसा करने के लिए डिसॉल्व द पार्लियामेंट बोलेंगे तो कब बोलेंगे? ये आप लोग जो है क्लास 7 में इसको पढ़ चुके हैं, स्टेट के कंसर्न में आप लोगों ने पढ़ा है। गवर्नर हैज ए राइट टू डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली। So here I have a question. The president has a right to dissolve the parliament. If the प्राइम मिनिस्टर उनको कहते हैं कि आप ऐसा करिए तो कब बोलेंगे प्राइम मिनिस्टर? तुषार कुमार, आपको मैं वेटिंग रूम में रखने जा रही हूँ इसलिए क्योंकि आपका माइक ऑन, आप वेटिंग रूम में चले जाइए। तुषार कुमार। यशवीराज, हाँ यशवीराज बोलिए। यशवीराज बोलिए। हाँ बोलिए। Ma'am, Prime Minister will send to President. So because ma'am, when Lok Sabha is not doing his, ma'am, when the Minister of Lok Sabha is not doing his duty perfectly. देखिए इसमें परफेक्टली का नहीं, when the majority जब नहीं रहता है, when the कहिएगा ruling party lost the majority, then the Prime Minister advised the President to dissolve the Parliament. समझ गए ना? Because the क्या कहिएगा आप याद करिए, the council are ministers are council of ministers are collectively responsible for the activities which is held in the parliament. Is it clear? समझ में आया कि नहीं? Yes, ma'am. हाँ, when the ruling party lost the majority or unable to prove the majority in the house in the floor, तो जो है अब उस कंडीशन में क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर एडवाइज द प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व द लोकसभा और क्या और आइदर टू डिसॉल्व और इनवाइट द अदर अपोजिशन पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट. Is it clear? When the ruling party fails to prove its majority in the parliament, in that case the prime minister advised the president to dissolve the parliament or invite the opposition party to form the government. This is the मतलब उसमें यही होता है. ठीक है, कहता है advised to do so by the prime minister. No bill passed by both the houses of the parliament become a law without his her consent.
जब तक प्रेसिडेंट अपना कंसेंट नहीं दे देते हैं तब तक कोई भी बिल पास नहीं होता है और वो लॉ नहीं बनता है। नेक्स्ट इज prior approval of the president is essential before a money bill is introduced in the prior मतलब पहले से ही प्रेसिडेंट को बताना पड़ता है। अगर मनी बिल पार्लियामेंट में होता है तो प्रेसिडेंट को पहले से बता दिया जाता है कि आएगा। अगर नहीं बताया जाता है तो वो जो है उसके अगेंस्ट में ये कर सकते हैं। 12 members of Rajya Sabha are nominated by the president from amongst the distinguished persons in the field of art, science, literature, social service। मतलब राज्यसभा के 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। इसलिए वो जो कि मतलब जैसे सचिन तेंदुलकर डिस्टिंग्विश मतलब अपने क्षेत्र में जिनका बहुत नाम रहता है, जैसे सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, दिलीप कुमार पता नहीं थे कि नहीं थे, लेकिन रेखा, ये लोगों को बनाया गया। जया बच्चन अभी हैं, ये लोग बनते हैं इन द फील्ड ऑफ आर्ट, साइंस, लिटरेचर, सोशल सर्विस, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा। ही सी कैन ऑल्सो नॉमिनेट 2 एंग्लो इंडियंस टू द लोकसभा। अब कहता है कि वो जो 2 एंग्लो इंडियंस को भी लोकसभा में, एंग्लो इंडियन मतलब जो लोग क्रिश्चियनिटी रिलीजन को मानने वाले होते हैं उनको भी ये नॉमिनेट करते हैं। इफ द कम्युनिटी इज नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंट, अगर उस कम्युनिटी के लोग मतलब नहीं है, मतलब मेंबर नहीं बने, तो वो 2 एंग्लो इंडियन को भी मतलब ये करते हैं, नॉमिनेट कर सकते हैं। ठीक है। Financial power. The annual budget of the country is presented in the parliament in the name of the president. अब पार्लियामेंट में जो एनुअल बजट दिया जाता है वो प्रेसिडेंट के नाम पे ही होता है। Similarly, all money bills also require his or approval before they are introduced in the लोकसभा। लोकसभा में जो मनी बिल आता है वो भी जो है उनके अप्रूवल के बिना नहीं होता है। He she has the power to appoint members of finance commission. फाइनेंस कमीशन के जो मेंबर्स होते हैं उनको भी वही जो है अपॉइंट करते हैं। Is it clear? Now, in case certain extraordinary situation arise, the president can sanction money to the government out of contingency fund to meet the situation. अगर कोई ऐसा सिचुएशन आता है इमरजेंसी फंड, तो प्रेसिडेंट जो है मतलब जब उसमें पार्लियामेंट वो तब आता है जब पार्लियामेंट फंक्शन में नहीं रहता है, तब प्रेसिडेंट जो है अपने रिस्क पर पैसा जो है गवर्नमेंट को खर्च करने के लिए, जो मतलब उसमें काम देखने वाली फिक्स गवर्नमेंट नहीं, गवर्नमेंट जो कि ऑन बिहाफ ऑफ द काम करती है, उसको वो पैसा सैंक्शन करते हैं, देते हैं, इस पैसे से अपना काम करिए। जुडिशियल पावर, ऑल द जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट इंक्लूडिंग देयर चीफ जस्टिसेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। वो भी जो है प्रेसिडेंट ही उनको अपॉइंट करते हैं। ऑन अपील फॉर मर्सी, द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू रिड्यूस द सेंटेंस और ग्रांट पार्डन और एमनेस्टी। और देखिए जो ये आप लोग जो है इसके पहले जो है क्लास 7 में आप द गवर्नर हैज ए राइट टू, हाँ क्या कहेगा, रिड्यूस, और कहेगा कि हाँ पार्डन द पनिशमेंट गिवन टू एनीबॉडी अकॉर्डिंग टू द स्टेट लिस्ट के। लेकिन ये जो है सेंट्रल लिस्ट के हिसाब से प्रेसिडेंट को पावर है कि वो भी किसी की सजा को कम कर सकते हैं, दया कर सकते हैं या माफ भी कर सकते हैं, पार्डन भी कर सकते हैं। ही सी कैन चेंज द डेथ सेंटेंस और कैन पोस्टपोन इट ऑल्सो। अब किसी को मतलब मान लीजिए कि उसको मृत्यु दंड की सजा मिली हुई है तो उसको चेंज कर सकते हैं या उसको खत्म भी कर सकते हैं, उसको आजादी भी दे सकते हैं। इमरजेंसी पावर, in case of extraordinary situation in the country or in one or more state, the president has been entrusted with certain emergency power. This can happen in 3 situations. अब कहता है कि अगर कोई ऐसा सिचुएशन बनता है कंट्री में कि या किसी एक या 2 स्टेट में भी बन जाता है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को क्या कहता है, उनको कुछ इमरजेंसी पावर भी मिला हुआ है। दिस कैन हैपन इन द 3 सिचुएशन में होता है। कैसे? एक होता है नेशनल इमरजेंसी, इफ द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री इज थ्रेटेन्ड बाय वार और एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल आर्म्ड रिबेलियन। अगर मान लीजिए कि बाहर के किसी देश से लड़ाई हो रहा है या कंट्री के अंदर ही कोई मतलब कम्युनिटी वार या कुछ भी ऐसा हो रहा है, तो उस समय द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी फॉर द होल कंट्री। तो प्रेसिडेंट पूरे कंट्री में एक इमरजेंसी का सिचुएशन कर सकते हैं कि सब लोग जो जैसे हैं इस तरह का काम आपको करना है। ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन ए स्टेट, अगर किसी स्टेट में कोई काम हो जाता है उस समय, इफ द गवर्नमेंट ऑफ ए स्टेट इज नॉट बीइंग रन इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्लास 7 में आप लोग याद करिए, यही वर्ड था। द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर इमरजेंसी इन दैट स्टेट, इट इज ऑल्सो
called imposition of president rule in my state. याद आ गया आप लोगों को? Yes or no? Yes or no? Yes, ma'am. याद आया? क्लास में अभी हमने आप हाँ yes financial emergency. When the financial stability of the country is threatened, the president can declare the state of financial emergency. अगर जो है मतलब कंट्री में मान लीजिए पैसे की कमी या कुछ ऐसा हो गया कि कंट्री के पास अपना खर्च करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो प्रेसिडेंट जो है फिनेंशियल इमरजेंसी भी डिक्लेयर कर सकते हैं. द इमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट आर नॉट एब्सोल्यूट. अब कहते हैं एब्सोल्यूट मतलब वो जब चाहे रुको. कौन है अभी? किसके घर से आवाज आ रही है? जरा देख लें किसका माइक ऑन था. तो सेल्फ म्यूट करके आपको बैठना ही है माइक, अदरवाइज इट इज वेरी बैड. आपको इस तरह से हल्ला करने का कोई राइट नहीं. अब कहता है एब्सोल्यूट मतलब वो अपने मन से नहीं कर सकते. ही सी कैन डिक्लेयर स्टेट ओनली ऑन द रिटन एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. रिटन एडवाइस जब तक वो लोग लिख कर नहीं देंगे तो सबसे ज्यादा पावरफुल कौन हो गया? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यूनियन पार्लियामेंट के मेंबर्स. समझ में आ गया? वो सबसे ज्यादा पावरफुल है. ऑल्दो द पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट जस्ट नॉमिनल, द कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज हिज हर पोजीशन एज वन ऑफ द अथॉरिटी एंड प्रेस्टीज. अब कहता है एकदम नॉमिनल है, लेकिन फिर भी उनके पद को बहुत मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पूरा इज्जत और ये दिया गया है. अब इसको हम एक बार पहले हम कुछ बच्चों से इसका रीडिंग करवा लेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे. नाउ जिया कुमारी, जिया कुमारी आप सुन रही हैं? जिया कुमारी स्टार्ट करिए पेज नंबर 222 का पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट का एग्जीक्यूटिव पावर पढ़िए. जिया कुमारी, जिया कुमारी, यू आर लिसनिंग और नॉट? नो. नाउ अदिति प्रिया 8G, आर यू लिसनिंग? हाँ अदिति प्रिया, हाँ चलिए. Ma'am. हाँ पढ़िए पेज नंबर 222 निकालिए. अदिति प्रिया. Yes, ma'am. हाँ चलिए. Powers and हाँ powers and functions of the president. The president of India is executive, legislative, judicial, financial, and emergency powers. Executive powers. Being head of the union executive, all the administrative decisions are taken in his name. He make all the important appointments, including those of the Prime Minister, Council of Ministers, Governor, Chief Justice, and judges of the Supreme Court and the High Court. Comptroller and auditor. And Auditor General of India and Attorney General of India. Yes. The President also appoints the member of Election Commission, Finance Commission, etc. He is the Supreme Commander of Indian Defense Forces. He has the right to be kept informed about all the decisions of the Council of Ministers through the Prime Minister. बहुत बढ़िया. ओके नेक्स्ट है प्रियांशु रजक. प्रियांशु रजक. Yes, ma'am. Legislative powers. The President, Rashtrapati, is an integral part of Indian Parliament. The President can summon, prorogue, and address the two houses of the Parliament. Every year, the first session of the Parliament begins with her or his address. She or he can dissolve the Lok Sabha before the expiry of its normal term if she or he is advised to do so by the Prime Minister. No bill passed by both the houses of the Parliament becomes a law without her or his consent. Prior approval of the President is essential before a money bill is introduced in Lok Sabha. 12 members in Rajya Sabha are nominated by the President from amongst
the distinguished persons in the field of art, science, literature, social service, sports, etc. She or he can also nominate two Anglo-Indians to the Lok Sabha if the community is not adequately represented. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आपने पढ़ा। ये शालीन संभव। Yes, ma'am. डू यू वांट टू स्पीक समथिंग? क्या कुछ बोलना चाहते हो शालीन? No, ma'am, I want to read. ओके, चलिए Can I? पढ़िए। फिनेंशियल पावर पढ़िए। शालीन संभव। Okay, ma'am. The Financial- annual budget of the country is presented in the parliament in the name of the president. Similarly, all money bills also require her or his approval before they are introduced in Lok Sabha. He has the power to appoint members of the Finance Commission in case certain extraordinary situation arise. The president can sanction money to the government out of contingency fund to meet the situation. यस, बहुत बढ़िया, Thank you. बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। उसके बाद है प्रिया कुमारी। नाउ प्रिया कुमारी Yes, ma'am. जुडिशियल पावर को पढ़िए। प्रिया कुमारी पढ़िए। Judicial powers. All the judges of the Supreme Court and the High Courts, including their Chief Justices, are appointed by the President. On appeal for mercy, the President had the power to reduce the sentence or grant pardon and amnesty. He can change the death sentence or can postpone it also. हाँ, ओके, गुड। प्रिया कुमारी के बाद देखो, बाद है अनुप्रिया कुमारी। Yes, ma'am. Emergency चलिए। powers. In case of extraordinary situation in the country or in one or more states, the president has been entrusted with certain emergency powers. This can happen in three situations. First, national emergency. If the security of the country is threatened by war or external aggression or internal armed rebellion, the president can declare a state of emergency for the whole country. Second, ओके, हो breakdown गया, of हो गया। अनुप्रिया कुमारी हो गया। Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, Thank you. यस। नाउ श्रेया कुमारी, आर यू लिसनिंग? श्रेया कुमारी, Yes, चलिए। ma'am. हाँ, चलिए स्टार्ट करिए श्रेया। चलिए। Financial Breakdown. emer- नो ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल Breakdown of- मशीनरी इन स्टेट। हाँ, चलिए पढ़िए। breakdown of constitutional machinery in a state. If the government of a state is not being run in accordance with the constitution, the president can declare emergency in that state. It is also called imposition of president's rule in a state. Financial emergency. ओके, हो गया प्रिया, गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है, हम एक बच्चा एक ही पॉइंट को पढ़ेगा, वो चाहे दो ही लाइन का क्यों ना हो। नाउ इट्स पीयूष राज। Yes, ma'am. हाँ, फाइनेंशियल इमरजेंसी पढ़िए। Financial emergency. When the financial stability of country is threatened, the president can declare a state of financial emergency. The emergency of powers of the president are not absolute. She or he can declare a state of emergency only on the written advice of the Council of Ministers. Although the position of the President of India is just nominal, the Constitution recognizes her or his position as one of authority and prestige. ओके, प्रेस्टीज, इसको प्रेस्टीजाइज नहीं, प्रेस्टीज। हाँ, ओके। नेक्स्ट कौन पढ़ेंगे? रेज हैंड रेज करिए। नेक्स्ट किनको पढ़ना है? रेज योर हैंड रेज करिए। दीप शिखा, श्रेया श्रीवास्तव। यस, पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। चलिए स्टार्ट करिए।
Powers and functions of the President. The President of Yes. India has executive, legislative, judicial, and financial and emergency powers. Executive powers. Being head of the Union Executive, all the administrative decisions are taken in her or his name. She or he makes all the important appointments, including those of the Prime Ministers, Council of Ministers, Governors, Chief Justice, and judges of the Supreme Court and the High Courts, Comptroller and Auditor General of India, and Attorney General of India. Okay, The Shreya. President- It's good. हो गया श्रेया. Thank you, ma'am. Yes. Yes. Good. बहुत बढ़िया. श्रेया कर दिया. यशवीराज नाम. यशवीराज. Yes, ma'am. The हाँ चलिए president. स्टार्ट कर. Yes, ma'am. हाँ. The president also appoints the members of Election Commission, Finance Commission, etc. She or he is the supreme commander of India's defense forces. She or he has the right to be kept informed about all the decisions of the Council of Ministers through the Prime Minister. बहुत बढ़िया. बहुत बढ़िया. Very good. नेक्स्ट है आरुषि राज. आरुषि राज चलिए स्टार्ट करिए. Yes, ma'am. आरुषि राज. Yes चलिए. Legislative powers. The President Rashtrapati is an integral part of Indian Parliament. The President can summon, prorogue, and address the two houses of the Parliament. Every year, Yes. the first session of the Parliament begins with her or his address. She or he can dissolve the Lok Sabha before the expiry of its normal term. If she or he is advised to do so by the Prime Minister, no bill passed by both the houses of the Parliament becomes a law without her or his consent. Prior approval of the President is essential before a money bill is introduced in Lok Sabha. बहुत बढ़िया. बहुत बढ़िया. 12 members नाउ यस हो गया. हो गया. nominated. यस हो गया. हो गया. यस हो गया. नाउ कौन है? कौन पढ़ना चाहते हैं? Who wants to read? देखती हूँ. आरुषि राज. आरुषि राज. आर्या. 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 Yes, ma'am. चलिए बढ़िए. Yes, ma'am. हाँ 12 members of Rajya Sabha are nominated by the President from almost the distribution person in the field of art, science, legislature, social service, sports, etc. She or he can also nominate two Anglo-Indians to the Lok Sabha if the community is not educated होगा. respected. ओके आर्या. गुड. बहुत Thank you, बढ़िया. ma'am. नेक्स्ट होंगे. नेक्स्ट देखो. कम से कम जो पढ़ रहे हैं अपने वीडियो को तो ऑन करिए. आर्या आपने बिना वीडियो ऑन किए हुए पढ़िए. माहेश्वरी यादव नाउ. माहेश्वरी यादव. माहेश्वरी यादव यू आर लिसनिंग. Ma'am, यस चलिए स्टार्ट करिए. financial Maheshwari. power. The annual budget of a country is presented in the parliament in the name of the president. Similarly, all money bills also require her his approval before they are introduced in Lok Sabha. He has the power to appoint member of the Finance Commission. In case certain extraordinary situation arise, the president can sanction money to the government out to contingency कॉन्टिजेंसी to फंड. meet mission. ओके वेरी गुड. सिद्धांत कुमार. सिद्धांत कुमार चलिए नेक्स्ट पढ़िए. सिद्धांत कुमार. Judicial powers. All the judges of the Supreme Court and the High Court, including their chief justices, are appointed by the President. On appeal for mercy, the President has the power to reduce the sentence or grant pardon or amnesty. She or he can change the death sentence or can postpone it also. वेरी Emergency गुड. बहुत powers. बढ़िया. अमित कुमार. अमित कुमार नाउ. अमित कुमार चलिए पढ़िए. अमित कुमार Yes, ma'am. National emergency. चलिए. If the security of the country threatened by the war, externally aggressions or internally armed rebellion, the president can declare the state emergency for the
whole country. Breakdown of the Okay. constitutional बहुत बढ़िया, machinery in the state. If the government of हो a गया state not अमित हो being गया in the अमित हो गया। नाउ तमन्ना कुमारी पढ़िए, ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन ए स्टेट पढ़िए, तमन्ना कुमारी। Yes, ma'am. तमन्ना कुमारी, Second, हाँ चलिए। breakdown of हाँ, constitutional machinery in a state. If the government of a state is not being run in accordance with the constitution, the president can declare emergency in that state. It is also called imposition of president's rule in a state. Third, financial बहुत बढ़िया। emergency. हो तमन्ना, यस हो Yes, गया ma'am. तमन्ना, ठीक है, हाँ ठीक है। इसके बाद कौन पढ़ेंगे तमन्ना के बाद? देखो रोनित राज, रोनित राज, रोनित राज, Yes, ma'am. यस रोनित, हाँ चलो स्टार्ट करो। Financial emergency. When the financial stability of the country is threatened, the president can declare a state of financial emergency. उसके बाद कभी लाइन पढ़ दीजिए, रोनित राज पढ़ दीजिए। The emergency powers of the president are not absolute. He can declare a state of emergency only on the written advice of the Council of Ministers. Although the position of the President of India is just nominal, the Constitution recognizes her his position as one of authority and prestige. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है दीपशिखा, दीपशिखा। Yes, ma'am. दीपशिखा स्टार्टिंग से पेज नंबर 222 चलिए। 22. Ma'am, executive power. हाँ पहले Ma'am, पावर्स एंड executive फंक्शंस ऑफ द power. प्रेसिडेंट पढ़िए, पहले पावर्स एंड Okay. फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट से Powers स्टार्ट and करिए। Okay, ma'am. Powers and function of the president. The president of India has executive, legislative, judicial, financial, and emergency powers. Executive powers. Being head of union executive, all the administration as administrative decisions are taken in her and his name. He makes all the important appointments, including those of the Prime Minister, Council of the Ministers, Governors, Chief Justice, and judges of the Supreme Court and the High Courts, comptroller and कंट्रोलर, हाँ ऑडिटर, comptroller, auditor कंट्रोलर general, एंड comptroller and हाँ auditor general of India and attorney general of India. The हो गया। ओके president दीपशिखा, हो गया दीपशिखा, ओके ओके। और कौन है? Is there? दीपशिखा के बाद माही कश्यप। नाउ माही कश्यप, माही कश्यप, Yes, ma'am. यस चलिए। The president also appoints the members of election commission, financial commission, etc. He is the supreme commander of India's defense forces. She and he has the right to be kept informed about all the decisions of the council of ministers through the prime minister. यस वेरी गुड माही, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट कौन पढ़ना चाहते हैं? मैम कैन यू एक्सप्लेन फाइनेंशियल पावर वन मोर टाइम? फाइनेंशियल पावर्स। द एनुअल बजट ऑफ द कंट्री इज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। मतलब जो पार्लियामेंट में जो बजट आता है तो बनाता है वो उसको ये यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, लेकिन वो जब प्रेजेंट किया जाता है तो नॉमिनल हेड जो है प्रेसिडेंट है, तो उनके नाम पे ही ये किया जाता है। Similarly, all money bills also require his approval before they are introduced. और मनी बिल जो भी लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है तो वो पहले उनके पास अप्रूवल के लिए भेजा जाता है। अगर उनको कोई अपोजिशन होता है, अगर कोई ऑब्जेक्शन है, तो वो उसको वापस भी कर सकते हैं पार्लियामेंट के पास। लेकिन वापस करने के बाद अगर पार्लियामेंट ने फिर से उनके पास भेज दिया तो 14 डेज के अंदर उनको अप्रूवल देना पड़ता है मनी बिल को। तो पार्लियामेंट इज मोर पावरफुल देन एनी अदर ऑर्गन, लेकिन प्रेसिडेंट जो है नॉमिनल हेड है हमारे, ये कर रहा है। He sees the power to appoint members of finance commission. फाइनेंस कमीशन मतलब जो कंट्री का जो फाइनेंशियल स्टेटस होता है
या लोगों का सैलरी इनहेंस करना है या जो भी होता है, तो एक कमीशन बनता है, उसको फाइनेंस कमीशन कहते हैं। तो वो जो भी मतलब अपॉइंटमेंट होता है वो प्रेसिडेंट ही करते हैं। लेकिन अप्रूवल देखिए, हमेशा एक बात याद रखिएगा, द मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर मोर पावरफुल, क्योंकि सारा पावर उनके अंदर होता है। क्यों होता है? बिकॉज दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल थ्रू द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन फॉर 5 years। उसके बाद इन केस सर्टेन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन अराइज, अब कहता है कि कभी कोई ऐसा सिचुएशन आया, मतलब उस समय, ये कहने का यहाँ मतलब ये है कि अगर पार्लियामेंट उस समय फंक्शन में नहीं है और कंट्री में कुछ पैसे की जरूरत पड़ गई, किसी कंट्री से मान लीजिए वार ही हो गया, पैसे की जरूरत पड़ गई, तो उस समय प्रेसिडेंट को क्या करते हैं, कैन सैंक्शन मनी टू द गवर्नमेंट आउट ऑफ कंटिजेंसी फंड। एक फंड रहता है जो कि प्रेसिडेंट उसको गवर्नमेंट को दे सकते हैं विदाउट अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। यहाँ कहने का मतलब ये है, उसके लिए पार्लियामेंट को अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है उस समय, टू मीट द सिचुएशन। दिस इज द फाइनेंशियल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। और किसी को कुछ समझना है? एनीवन? कोई और कोई क्वेश्चन है, पूछ सकता है हमसे? एनीवन हैज एनी क्वेरी, मे आस्क? नो मैम। किसी का कोई क्वेश्चन है? नो मैम। नो। नो मैम। नो मैम। ओके, द टाइम इज ओवर नाउ। हाँ, पढ़ लीजिएगा ठीक से, अच्छी तरह से इसको, ठीक है? टुमारो वी विल कंटिन्यू द चैप्टर। हैव अ गुड डे। दिस इज योर होमवर्क। ओके। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. Thank you.